objective is to actually एक अच्छा number of question हम यहाँ पे solve करते हैं बैठ के. We try to solve some handful number of questions and we try to cover certain glands over here. I think आप लोग समझ पा रहे हो what we are trying to do. यहाँ पे हम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास के अंदर ही, आपके अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं उसके ऊपर, और जो होमवर्क आपको मिल रहा है अलग से आपको मिल रहा है, दैट यू फोकस ऑन दैट. So when I tell you photosynthesis and respiration in plants, you focus on that, try to get those things done from your side. यहाँ पे हम इसको संभालते हैं. Let's solve some question based on chemical coordination, neural control, ताकि ये 3 चैप्टर आपका बने, उसके ऊपर आपका ग्रिप यहाँ पे, you are able to have a grip on this chapters and साइड में आपका प्लांट फिजिक्स भी आपका यहाँ पे होता रहे. That is what we will be trying to do over here. Just let one message on this. Hanji Om, good evening. Then we can start. I think from Himachal we have everyone except Diksha, and Punjab we have everyone. Rishabh, good evening. Like that's it. Okay. Okay, इसमें disorder हम लोग बाद में देखेंगे. We'll be doing the disorders in the later part of the chapter. First of all, let's understand the hormones. The last thing we have done in the class was something in terms of my pituitary gland and what kind of like issues can have अगर वहाँ पे अगर आपका tumor formation आपके यहाँ पे होता है. तो हमने ये बात हमने देखी थी. Then I have explained you something like my portal system. अगर आपको याद होगा अच्छे से, we have done the portal system. ये याद रखना. You will find it's a very important small part which you have to know. कि क्या होता है मेरा पोर्टल सिस्टम और कौन से होता है आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर. सो यू शुड नो यू हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड यू हैव अ हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम. ये हमने यहाँ पे देख लिया था. देन वी कैन डिस्कस नाउ समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय थायराइड ग्लैंड. सो जब भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ समथिंग लाइक योर थायराइड ग्लैंड, so you should know one thing in this, that thyroid gland is something which will be making my 2 hormones. ये मेरा gland होता है मेरे neck वाले area के अंदर. I think this is something you are all familiar with. This is something you will find in the neck area. So neck region के अंदर you will have this thyroid gland. And thyroid gland आपके 2 hormone आपको बना के देगा यहाँ पे. It will make 2 hormones over there. And those 2 hormones are my T3 and T4. T4 को even यहाँ पे बोलता है thyroxine. T3 को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्राइआयोडोथायरोनाइन. Okay, so you'll find your T3 and T4 are the 2 hormones you'll be finding found in the thyroid gland. अब सवाल यहाँ पे आता है कि T3 and T4 आपके यहाँ पे हार्मोन बन रहे हैं, इनमें से ज्यादा एक्टिव कौन होता है? तो याद रखना आपका ज्यादा एक्टिव यहाँ पे आपका होगा T3. T3 is a much more active form. So T3 is a much more active form than my T4. Right? Now when you observe the cells, now you should know one thing, that जब भी आप observe करो thyroid gland को, मैंने आपको आपके सामने पिक्चर बना के रखी हुई है, that you will have a follicular cells. आपके यहाँ पे कई सारे आपके follicular cells हम बोलेंगे यहाँ पे. You'll have a large number of follicular cells आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, right? और बीच में जो आपका स्पेस है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कोलॉइड. बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है खाली, वो कॉलम है कोलॉइड. और कोने कोने में आपको यहाँ पे कुछ पैराफोलिकुलर सेल्स भी आपको दिख रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे सी सेल्स. So there are some other kind of cells I will be finding over there. They are called as C cells. ठीक है. आपको यहाँ पे थर्ड ग्लैंड के 2 लोब आपको दिखेंगे यहाँ पे. You have a right lobe, you have a left lobe, and they are connected with the help of a small structured tissue called as my isthmus. तो isthmus नाम का एक small tissue आपको यहाँ मिलेगा, जिसकी वजह से आपका राइट एंड लेफ्ट लोब आपके यहाँ पे कनेक्टेड आपका होगा. आप फिलहाल के लिए ये याद रखना कि फॉलिकुलर सेल्स आपके यहाँ पे, इन सेल्स की मदद से आप अपने यहाँ पे T3 एंड T4 आप बना पाओगे.
और T3 एंड T4 जो आपके यहाँ पे बनाया जाएगा वो आप यहाँ पे बीच में ही रखते हो, इनिशियली आप बना के उसे यहाँ पे बीच में रखते हो, देन उसको आप बाद में रिलीज करते हो ब्लड के अंदर। ओके, अब सवाल यहाँ पे आता है कि T3 एंड T4 को बनाया कैसे जाता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। दैट व्हेन यू टॉक अबाउट T3 एंड T4 ना, यू शुड नो दैट देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन अमाइनो एसिड। T3 एंड T4 बनाने के लिए आपका यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड दैट अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बी माय टायरोसिन। तो टायरोसिन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा एज अ अमाइनो एसिड। सो व्हाट विल हैपन इन दिस, you have a single molecule of tyrosine combining with 3 molecules of iodine। अगर मेरा सिंगल मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे टायरोसिन का है और अगर ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन का यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, देन दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय T3, दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर T3। तो याद रखना T3 फॉर्मेशन आपका तब होता है जब आपका टायरोसिन आपका कंबाइन करता है आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ। व्हेन योर टायरोसिन विल कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर T3, राइट। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड कि जब मेरा यहाँ पे टायरोसिन मॉलिक्यूल, टायरोसिन एज अमाइनो एसिड जब मेरा कंबाइन करता है मेरे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ, तो सिंपल सी बात है आपके यहाँ पे जो बन के आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर T4। सो T3 एंड T4 आप इस तरीके से बना लेते हो। तो कई बार आप T4 को बना के रखते हो लेकिन बाद में से आप कन्वर्ट कर देते हो आपका T3 के अंदर, क्योंकि ये आपका ज्यादा एक्टिव फॉर्म होता है। सो यू शुड नो दैट आउट ऑफ T3 एंड T4 यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट माय T3 इज अ मच मोर एक्टिव फॉर्म। तो ये याद रखना कि आपका अमाइनो एसिड जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट इज गोइंग टू बी टायरोसिन। और दूसरी चीज याद रखना कि आपको आयोडीन की यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरत होती है। यू विल हैव अ इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। बिना आयोडीन के आप अपने यहाँ पे T3 T4 आप नहीं बना सकते। आपने पता है बचपन में एक बीमारी पड़ी होगी गॉइटर करके, यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर ऑफ गॉइटर। Yes, गॉइटर वाली इमेज आपने यहाँ पे देखी तो आपने नोटिस किया होगा वहां पे लाइक एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपका निकल के आ रहा होता है, लाइक इट्स अ स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड एक्चुअली हैपनिंग। नेक पूरा ऐसे बल्ज आउट आपको वहां पे दिख रहा होगा। तो ऐसा होता क्यों है मालूम है क्या? सी, goiter is something you have heard, like goiter is something which happens because of a deficiency of iodine. It happens because of a deficiency of iodine in your diet. अगर आपके ब्लड में आयोडीन की कमी तो आपको goiter यहाँ पे होगा। आप समझो ये होता क्यों है? जनरली करता आपके बॉडी में होता ही है ना दैट यू हैव अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जाके बोलता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, इट विल गो एंड टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड, I'll just write in short. उसमें से मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी you will have the anterior part. So in the pituitary gland you will have your, इसके भी anterior part को ये जाके बोलेगा, AP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे समझ जाना, anterior part को ये जाके बोलेगा to start releasing a hormone called as my TSH. So anterior part से आपका एक हार्मोन आएगा जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, thyroid stimulating hormone TSH will come from the anterior part. Now this TSH जो आपका यहाँ पे आ रहा है from the anterior part of the pituitary gland, ये जाके टारगेट करता है, इट विल गो एंड टारगेट माय थायराइड ग्लैंड। ये जाके आपके थायराइड ग्लैंड को जाके बोला कि चलिए बनाइए अपना यहाँ पे T3 एंड T4 आप बनाना चालू करिए। सो दिस विल गो एंड टेल द थायराइड ग्लैंड टू स्टार्ट मेकिंग माय T3 एंड T4। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इमेजिन करो देयर इज अ पर्सन सफरिंग विद goiter, दैट मींस लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग विद डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका एंटीरियर पार्ट से आपका आएगा TSH, आपका एंटीरियर पार्ट से TSH आएगा और वो जाके बोलेगा थायराइड ग्लैंड टू मेक द T3 एंड T4। बट क्योंकि ब्लड के अंदर आयोडीन है ही नहीं तो T3 एंड T4 तो बनने से रहा। आई होप इट मेक सेंस। अगर ब्लड के अंदर आयोडीन नहीं है तो T3 एंड T4 तो आपका बनेगा नहीं वहां पे, लेकिन आपका सिग्नल ऊपर से आता रहेगा। TSH will keep on coming all the time and will keep on telling the thyroid gland to start making my T3 and T4. ये आके बोलता रहेगा, this will keep on coming and will keep on telling the thyroid gland कि बनाइए आप T3 T4 बनाइए। And because of the constant stimulation of the TSH, your thyroid gland will undergo swelling. Because आपके यहाँ पे constant stimulation आपके यहाँ पे आ रहा है, because of the constant stimulation, you will find the thyroid gland will undergo swelling. अब उसका constant stimulation आना लाजमी है, because T3 and T4 are some of the important hormones. So it will just keep on going and telling the thyroid gland to make them T3 and T4. और जब आप पे ये बना नहीं पाता, because of that you will find the swelling will happen. Because swelling आपका basically हो रहा है because of the constant stimulation, right? And then you can see that thing visibly in front of you. तो याद रखना, your iodine is going to be super important. Without that, your T3 T4 formation won't be happening. ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। हाइपोथैलेमस से जो आपके यहाँ पे हार्मोन है, that was my thyroid releasing hormone, आपका यहाँ से आएगा। It will go and tell my
pituitary gland to start releasing my TSH. ठीक है? So this is how it is going to work. This is how it's going to work in this. ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. No. Yes. Once you are done with this, now let's quickly pay attention to that why T3 and T4 is important, right? So आपका यहाँ पे important है, like what is the function over here? Okay. So my thyroid hormones, कुछ चीजें याद रखना है यहाँ पे. जैसे first thing, thyroid hormones are the one which maintains a basal metabolic. They maintains basal metabolic rate. Basal metabolic rate. तो आपके बॉडी के अंदर यू हैव टू नो दैट कि आपके बॉडी में आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका मेंटेन किया जाता है, एंड दैट इज बीन मेंटेन बाय माय थायराइड हार्मोन्स. सो आपने ये बात कभी शायद फैमिली में अगर कभी आपने इसको देखा हो, पीपल हैव दिस थायराइड का इशू होता है लोगों को, और थायराइड का इशू अगर होता है तो दो चीज आपको देखने को मिल सकती है. इधर पीपल पुट ऑन वेट वेरी इजीली या दे लूज द वेट वेरी इजीली, राइट? हाँ, या फिर उनका वेट वो लोग पुट ऑन कर लेते हैं काफी आसानी से, या फिर उनका वेट आपका काफी नीचे चला जाता है. यू हैव टू कंडीशंस. तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या कहता है आपका यहाँ पे, दैट देखो हर किसका मेटाबॉलिक रेट होता है. एवरीवन हैव सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म. जो लोग काफी बल्की होते हैं, ओबेस होते हैं, राइट, उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट थोड़ा स्लो होता है, और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका थोड़ा वहां पे नीचे होगा, स्लो होगा. एंड सम पीपल हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मतलब अगर वो कुछ भी खा रहे हैं तो उनकी बॉडी उसे कंज्यूम कर लेती है, उनकी बॉडी उस चीज को फटाफट बर्न करके लेती है, एंड दे आर नॉट एबल टू पुट ऑन वेट वेरी इजीली. ऑन द अदर हैंड, जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत नीचे होता है ना, या इनका लो होता है, तो उनमें क्या होता है, वॉट एवर दे आर गोइंग टू ईट विल गेट स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ माई ग्लाइकोजन और फैट, तो वेट पुट ऑन काफी जल्दी करता है. सो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके जो बॉडी का होता है ना, हम सबके बॉडी का, इसे मेंटेन कौन करता है आपके यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड. सो अगर आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन आपका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, देन यू विल हैव अ वेरी लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड इन दैट केस विल पुट ऑन वेट वेरी इजीली, राइट? तो ये बात आपको याद रखनी है. ये बात आपको समझनी है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी बॉडी का होता है ना, उसको मेंटेन करता है थायराइड हार्मोन. किसी में ये बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका ज्यादा होता है, फास्ट होता है, किसी में लो होता है, राइट? हाई या लो यहाँ पे रहेगा. हाई है तो पीपल आर जनरली लीन, राइट? इफ यू हैव इट्स अ वेरी लो, देन पीपल पुट ऑन वेट वेरी इजीली. तो इसको मेंटेन करता है मेरे यहाँ पे थायराइड हार्मोन. सो दिस इज व्हाट विल बी डूइंग ओवर देयर. Second thing, mental growth in early childhood days. Mental growth in early childhood days. ये भी याद रखना, this is very important. इनिशियल डेज के अंदर अगर बच्चे के डाइट में आपको सही अमाउंट में अगर आयोडीन नहीं दे रहे, then it will have an impact. Because T3 and T4 are super essential for the mental growth in the early childhood days. ये बात याद रखना. T3 and T4 are also essential for my protein synthesis. They're also going to be essential for, they're also going to promote, T3 and T4 are also going to promote my protein synthesis. So protein synthesis को भी ये लोग यहाँ पे अपना promote करते हैं. मेरी वॉइस कट रही है या कट चुकी है? What is happening? बताओ पहले तो मुझे यहाँ पे कि वॉइस अभी भी कट रही है, अभी बीच में कट रही थी? सर नहीं कटी. नहीं कटी सर. अच्छा, अरे अक्षर जरा देखना बेटा, नेटवर्क चेंज करके देखना, वॉइस का इशू अगर आ रहा हो तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, जस्ट चल. अभी भी अक्षर आ रही है, मेरी आवाज कट रही है अभी? ठीक है सर अक्षरा क्लास में ही नहीं. ओके, आएगी बेटा, आएगी, रीजॉइन करेगी आई गेस. Alright, so you will find that is what you find happening in this. So you have it will maintain the basal metabolic rate and mental growth in early childhood days. Also going to promote my protein synthesis भी आपके यहाँ पे ये promote करेगा. These are like you will have multiple roles, but these are some of the basic important roles you have to know about by T3 and T4, right? It also maintains your body homeostasis. It maintains the homeostasis of the body. It maintains homeostasis of body. मतलब कितना आपका वहां पे हो रहा है, आपके यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी बॉडी में हो रहा होता है, उसको वो मेंटेन करता है. सो दैट इज समथिंग आल्सो मेंटेन बाय माय T3 एंड T4. ये कुछ रोल पहले आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एंड देन अदर रोल्स आर समथिंग व्हिच आर लाइक सप्लीमेंटरी रोल्स ओवर देयर.
कि थर्मो रेगुलेशन में भी आपकी मदद कर देता है. बट दीज आर द फ्यू रोल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेंटल ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड डेज एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ये 3 चीजें पहले आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय थायराइड हार्मोन. बाकी सब चीजें आपकी होती है सेकेंडरी. एंड देन यू आल्सो हैव दिस थिंग मेंटेन्स द होम्योस्टैटिस ऑफ द बॉडी, राइट. चलो अब यहाँ पे देखते हैं. T4 secreted by a thyroid gland in the bloodstream travels to the organs such as kidney, liver, where it gets converted into the active form of my triiodothyronine. So that is your T4 getting converted into my T3. ये आपका किडनी लिवर में जाके आपका ये कन्वर्ट हो जाता है. Then T3 is the thyroid hormone that affects the physiological process such as growth, development, metabolism. इन सबको यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा. So it again it's a very 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 important hormone. T3 and T4 दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन हो जाते हैं. These follicular cells synthesize 2 hormones, T3 and T4, tetraiodothyronine, that's called as my thyroxine, and triiodothyronine, that's my T3. देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our diet results in a hypothyroidism. अगर डाइट के अंदर आपका नहीं है iodine, then a person is suffering with a hypothyroidism. मतलब थायराइड की वहां पे कमी है, थायराइड हार्मोन की वहां पे कमी है. And this will lead to enlargement of the thyroid gland, commonly called as my goiter. Simple. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby. मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि T3 and T4 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. अगर आपका जनरल ग्रोथ भी आपका अफेक्ट करेगा एंड योर मेंटल ग्रोथ विल आल्सो गेट अफेक्टेड अगर आपका T3 and T4 का इशू है मदर के अंदर. So hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby, leading to stunt growth, mental retardation, low intelligence, abnormal skin and deaf mutism. ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है if there is a lack of T3 and T4 during pregnancy in the mother's body. तो अफेक्ट करेगा बेबी को भी वहां पे, because baby will also not have right amount of T3 and T4. So this will lead to condition of your cretinism. So cretinism अगर आपके सामने टर्म आ रहा है याद रखना, this is all happening because of your hypothyroidism. And these are the symptoms you'll get to see. Stunt growth and mental retardation is something which you can very clearly see. ये सारे आपके उससे रिलेटेड जो आपको बताता है यहाँ पे आपको. Low intelligence is something we'll get to see. Abnormal skin and deaf mutism is something we'll find happening. तो अगर thyroid hormone अगर आपका कम हुआ, this is what you find happening in the body. अगर after delivery also, if the diet of the baby does not have right on iodine, it will still have an impact on the brain. It will still have the growth of the brain as well as your physical growth. में वो affect करेगा. So याद रखना T3 and T4 are super essential for the everyone, right? And especially in the early childhood days. Then thyroid hormone plays an important role in regulation of my basal metabolic rate, supports process of my RBC formation. So red blood cell formation में भी आपके यहाँ पे मदद कर देगा ये. बहुत extensively नहीं, but it will have a supporting role in the formation of my RBC. Thyroid hormones control the metabolism of my carbohydrate, protein, fat. Basically, basic metabolism में आपके यहाँ पे मदद करता है. Maintains water and electrolyte balance, also influenced by my thyroid hormone. अब ये सारे आपके secondary role हैं. They are all my secondary role. You have to know initially the first role, the important role. Thyroid gland also secretes protein hormone called as my thyrocalcitonin (TCT), which regulate the blood calcium level. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये क्या हो आ गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. अगर आप पिक्चर यहाँ पे याद करोगे तो हमने यहाँ पे बताया था पिक्चर में यहाँ वो पैराफोलिकुलर सेल्स दिखा है ना आपको. यहाँ पे यहाँ वो पैराफोलिकुलर सेल्स यहाँ पे सी सेल्स भी हम यहाँ पे बोलते हैं. ये आपके रिलीज करते हैं आपका यहाँ पे thyrocalcitonin, which also in short you can also call them as a AKA, also known as calcitonin. So याद रखना थायराइड ग्लैंड के अंदर you have a cell and those cells are called as my C cells, या इन्हें हम कह सकते हैं as a parafollicular cells. यहाँ से आपका एक हार्मोन आ रहा है and that hormone is called as my calcitonin. अब इसका रोल यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है. Calcitonin will have a completely different kind of role. For example, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, अगर आपके कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो कैल्सिटोनिन आके यहाँ पे क्या करेगा. सो लेट मी टेल यू दिस थिंग. इफ यू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, so if you have a elevated calcium in the blood, तो पहले तो आप क्या करते हो कि अगर आपके पास कैल्शियम ज्यादा है ना तो आप उसे बोन्स में रख देते हो. That's what you do. That when you have a amount of calcium in the blood, you send them towards the bones ताकि बोन्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सको. बट वो भी आपका एक सर्टेन हद तक ही होगा.
That is something which will also happen only up to certain extent. When you have a high amount of calcium in the blood, what will happen sometimes, you will find the calcitonin will come. ये टाइम पे आपका calcitonin आपका आएगा यहाँ पे, so your calcitonin will come and this will decrease the blood calcium level. तो ये basically आपका यहाँ पे आएगा and going to actually help to decrease your calcium level. तो ये कैल्शियम लेवल को नीचे लेके आता है. कैसे लेके आता है? इट विल गो एंड टेल द किडनीज नॉट टू रीएब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस. ये जाके किडनी को बोला कि भैया कोई जरूरत नहीं है कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करने की, जाने दो. इट विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन नॉट टू रीएब्सॉर्ब कैल्शियम आयन. इट विल गो एंड टेल द किडनी नॉट टू रीएब्सॉर्ब कैल्शियम आयंस. तो जब ये जाके किडनी और इंटेस्टाइन को जाके बोल रहा है कि आप कैल्शियम आयन को एब्सॉर्ब मत करो, तो सिंपली क्या होगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग कैल्शियम अलॉन्ग विद द ब्लड स्ट्रीम एंड अलॉन्ग विद द यूरिन एंड योर फीकल वेस्ट. सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग डाउन द कैल्शियम लेवल. तो ये याद रखना, कैल्शियम का काम बिल्कुल अलग होता है. यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल यहाँ पे ज्यादा है, देन ये आपका यहाँ पे आएगा एंड गोइंग टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल फ्रॉम द बॉडी. तो ये बात भूलना मत, इसका रोल अलग है. इसका रोल डिफरेंट है फ्रॉम माय पैराथायराइड हार्मोन से. पीटीएच कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता था, ये कम कर रहा है. तो बेसिकली इट विल गो एंड टेल द किडनीज एंड इंटेस्टाइन कि जाने दो, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे कैल्शियम का रोल समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे बोलो. यस सर. इसमें गड़बड़ मत करना फ्यूचर में. एंड देयर इज समथिंग विल फाइंड इन द थर्ड ग्लैंड के अंदर आपको मिलेगा ये कैल्शिटोनिन व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल. अब जहां पे लिखा हुआ है ना ब्लड कैल्शियम लेवल, तो आपको याद रखना इट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल फ्रॉम द ब्लड. नाउ देन वी हैव अ पीटीएच. अब पीटीएच की कहानी आपने सुनी थी पहले भी, ये तो हमने सुन चुके हैं ना, ये तो हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं ना. पीटीएच अभी आया था बीच में कहीं, तो भी हमने पढ़ा था इसे. पीटीएच आपका रिलीज करेगा लाइक ओके sorry, you have a PTG, parathyroid gland, right, जो आपका होता है within the thyroid gland. So this is a gland we'll find within the thyroid gland. So PTG stand for parathyroid gland over here. अब ये ग्लैंड आपका रिलीज कर रहा था हार्मोन, दैट हार्मोन वाज माय पीटीएच. मेरा सवाल आपसे ये है, आप बताओगे हैंड रेज करके, मेरा पीटीएच ब्लड के अंदर कब आता है? पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच ब्लड के अंदर आएगा कब? ऐसे तो नहीं आएगा, रीजन होगा तभी आएगा, राइट? सो बस दो लोग, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चलिए जसूर बताइए, व्हेन डज द पीटीएच विल बी कमिंग फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड? सर जब ब्लड में कैल्शियम आयन सर्कुलेट होते हैं. जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस कम हो जाएंगे. ओके, सो व्हेन यू हैव अ लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, सो याद रखना व्हेन दिस गोइंग टू बी अ लो कैल्शियम आयंस इन ब्लड, वो टाइम पे आपका यहाँ पे पीटीएच आएगा फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड. तब आपका यहाँ पे आएगा आपका पीटीएच. नाउ व्हेन यू फाइंड दिस पैराथायराइड हार्मोन कमिंग फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, व्हेन यू हैव अ लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड. अब बताओ ये करता क्या है? नाउ जसनूर यू आल्सो टेल मी. तब ये आप, अब चलिए आपका यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे करेगा क्या? ब्लड में कैल्शियम की कमी है, ये आ गया. नाउ व्हाट इट विल डू? सर कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करेगा ब्लड में. कैसे? वही तो जानना है हमें. बताइए तो अंकुरित, कैसे इंक्रीज करेंगे हम? अच्छा, सर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम आयन का वो कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना, तो ये बोन्स से कैल्शियम आयंस निकालना शुरू कर देता है और ब्लड में बढ़ाता है, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज होती है ना, तो जो बॉडी की, जो उसको करने के लिए ये बोन से उतारता है. राइट, बिल्कुल सही. So you will find my PTH will come over here. मेरा PTH यहाँ पे आएगा and this PTH will go and tell the bones. So my PTH will come over here. This PTH will come and tell the bones. So ये bones क्या बोलेगा? To release out the calcium ions. So it will go and tell the bones to start releasing the calcium ions. This हम कहते हैं as a demineralization. So you'll find your calcium ions will start coming out from this particular area. So calcium ions आपके bones से यहाँ पे आपके निकल के आ रहे हैं. अब जब मेरे कैल्शियम आयंस बोन से निकल के आएंगे ब्लड के अंदर, देन ऑब्वियसली आपके यहाँ पे क्या होगा? द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज. सो याद रखना, पैराथायराइड हार्मोन इस तरीके से क्या करता है? अल्टीमेटली व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. It will ultimately going to increase the blood calcium level in the body.
तो यार इतना पीटीएच का बिल्कुल उल्टा होता है, ये आपका आके कैल्शियम लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी से सरल बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आप अगर आप, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी thoroughly, that calcium ions are essential. They're essential for my muscular contraction, they're essential for my transmission of nerve impulse, and they're essential for my blood clotting. So you always need to have a right amount of calcium ion in the blood. वो आपको हमेशा चाहिए. Now that can only happen when you have when you have a right amount of calcium in the blood, that can be maintained with the help of my PTH. अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा नीचे गया ना, द पीटीएच विल कम फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड. It will go tell the bones to start releasing the calcium ions so that you can have a right amount of calcium in the blood. इसके साथ साथ your PTH will also ensure that कि आपके किडनी से भी आपका कैल्शियम का एक्सक्रीशन आपको यहाँ पे ना हो, उनको भी आप ब्लड में लेके आओ. And going to also ensure that your intestine are also absorbing the calcium ion and not letting them go along with the feces. So हर एक तरीके से आपके कैल्शियम के लेवल को यहाँ पे वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे सबको क्लियर होना चाहिए दैट हाउ माय पीटीएच इज गोइंग टू वर्क. कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद देम. तो यहाँ पे आपको कोई भी कितना भी घुमा के आपसे सवाल पूछे, यू शुड बी एबल टू आंसर देम. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं. इन ह्यूमंस 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. So याद रखना, within the thyroid gland you will have a 4 parathyroid gland. या पीछे के साइड पे आपके लगे होते हैं आपके यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड. सो आप दिस वन, ये आपके 4 आपको लगे हुए आपको मिल जाएंगे. ओके, द बैक साइड ऑफ द thyroid gland, 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland. The parathyroid gland secretes a peptide hormone called as my parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by the circulating level of the calcium ions. अगर calcium ions का लेवल नीचे गया, PTH will come and increase the calcium level. So parathyroid hormone increases the calcium level inside the blood. कैसे इंक्रीज कर रहा है ये बात आपने भूलनी नहीं है. It will go and tell the bones to take out the calcium ions and going to ensure that the level has been maintained. PTH acts on bones, stimulate the process of bone resorption. Resorption का मतलब आपको यहाँ होता है, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे demineralization, यहाँ पे वो करके देगा आपको. Reabsorption of calcium ions by renal tubules. किडनी को भी जाके बोलेगा, किडनी को जाके इसने बोलना है कि कोई अब जरूरत नहीं है, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द कैल्शियम आयंस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज कम है. तो मैंने आपको बोला था कि बोन्स को तो कह ही रहा है वो, किडनी को भी जाके कह रहा है वो, दैट्स योर रेनल ट्यूब्यूल्स. इट विल आल्सो गो एंड टेल माय इंटेस्टाइन एज वेल, इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, कि आप उसे एब्जॉर्ब करो ताकि आप कैल्शियम के लेवल को आप मेंटेन कर पाओ. राइट, PTH is a hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium level. ये बात भूलना मत, PTH आपका blood calcium level को आपके यहाँ पे increase करेगा हमेशा. Right, along with TCT, thyrocalcitonin, it plays a significant role in calcium balance inside the body. So TCT का रोल क्या होता है? नीचे लाना. पैराथायरॉइड हार्मोन का रोल यहाँ पे होगा to increase the blood calcium level. This is what you have to know in terms of my parathyroid gland. ठीक है, आई होप ये सब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. ऑल दिस 2 slides are clear to all of you along with the slide in which I have drawn a bone. आई होप इतनी बातें आपको समझ आ रही है. इसमें कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही then please let me know. Then let's discuss about something called as my thymus. अब thymus के बारे में आप ही बता दो, इसके बारे में तो आप वैसे भी आप कुछ चीज आप जानते हो, you know few things about it. कोई बताएगा thymus के बारे में कुछ, some information about the thymus, that what is your thymus, या किस चीज के लिए हमने इसे जाना जाता ही है thymus as a organ. बोलिए अनिरुद्ध, बताइए. अनिरुद्ध बोलो. अरे अनिरुद्ध आवाज नहीं पहुंच रही. ठीक है, और लेट बताइए पूर्वा, क्या होता है थैमस, क्या करता है? ये जो हमने टी सेल्स पढ़े थे ना, ये वहाँ उनको डिफरेंशिएट करता है, वो फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो याद रखना है यहाँ पे थैमस इज अ ऑर्गन व्हिच इज गोइंग टू रिलीज समथिंग कॉल्ड बाय थाइमोसिन. ये आपका यहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगा एंड दैट हार्मोन हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय थाइमोसिन. सो याद रखना, थैमस इज वन ऑफ द ग्लैंड. ये ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द हार्ट्स, लाइक बिटवीन विद इन द, लाइक क्लोजर टू द हार्ट विल फाइंड दिस ग्लैंड. ओके, नाउ दिस ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज द हार्मोन and that hormone is called as this is a hormone that's called as my thymosin. आपने ये बात पढ़ी थी that thymus is known for my T cells maturation.
मैच्योरेशन आप बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हो। तो टी सेल्स का मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे हो रहा होता है, राइट। बोथ द इवेंट्स आर हैपनिंग इनसाइड द थाइमस। सो इम्यूनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली मैं कहता in your cell mediated response can get affected। अगर ये डैमेज होता है तो याद रखना, तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो आपका होगा यहाँ पे वो आपका अफेक्टेड होगा। इट विल गेट अफेक्टेड, इट विल गेट अफेक्टेड if thymus gets damaged, if thymus gets damaged। आपको ने एक और बात यहाँ पे बताई थी कि थाइमस का जो साइज होता है ना, जो आपका अभी साइज है और आपका 70 साल का जो साइज होगा वो काफी डिफरेंट होगा। So the thymus you have right now will have some kind of size over there, but with the course of time, what will happen now? It will start shrinking. So ये बात भी आपको याद रखनी है, the thymus is going to shrink with age। तो इसका साइज एज के साथ साथ छोटा होने लगता है। अगर इसका साइज एज के साथ साथ यहाँ पे छोटा हो रहा है, that ultimately going to also affect my cell mediated response। मतलब जिस तरीके से मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दे रहा है मेरे 25 साल की एज के अंदर, एज आई बिकम 75 ना, वो टाइम पे मेरा इम्यून सिस्टम वैसा रिस्पॉन्स मुझे दे नहीं पाएगा। बिकॉज थाइमस विच इज नोन फॉर माई सेल मैच्योरेशन, टी सेल मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, ये उस तरीके से काम करेगा नहीं जैसे करना चाहिए। एंड दिस विल हैव इम्पैक्ट, दिस विल इवेंचुअली हैव इम्पैक्ट ऑन माई ओवरऑल हेल्थ, राइट। तो ये बात याद रखना कि थाइमस का साइज एज के साथ साथ आपका छोटा होते जाता है। इसके अंदर यू नो इट इज नोन फॉर माई टी सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका है, दैट्स माय थाइमोसिन। सो थाइमोसिन इवेंचुअली हेल्प्स इन माय टी सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टी सेल बनते कहाँ पे, तो आपका आंसर क्या होगा? वेयर डू आई टी सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड? बोन मैरो, बोन मैरो। हाँ, बोन मैरो में आपके टी सेल्स बनते हैं, लेकिन इनका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन आपका जो यहाँ पे होगा, दैट विल बी हैपनिंग इन माय थाइमस। सो these are the 3 important points you have to know। बाकी सब सेकेंडरी है। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी कि थाइमस आपका कर क्या रहा है। यहाँ पे आपका थाइमोसिन हार्मोन बना रहा है, टी सेल्स का मैच्योरेशन यहाँ पे होगा, डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, राइट। मतलब यू कैन फाइंड टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल्स आपके यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दिस विल बेसिकली टू एन एक्सटेंट हैव इम्पैक्ट ऑन योर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, विच मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे टी सेल्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। एंड गोइंग टू श्रिंक विद द एजिंग, एजिंग के साथ इसका साइज आपके यहाँ पे श्रिंक होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अगर ये पॉइंट्स समझ नहीं आ रहे, देन पूछ लो। If any of these points are not clear to you, then please go ahead and ask your question। मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। When I say T cell maturation ना, you should understand कि टी सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कौन सा सेल सेल्फ है, कौन सा सेल नॉन सेल्फ है। ये बात आई थिंक आप समझ सकते हो। और इम्यून सेल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज नॉन सेल्फ, राइट। मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि आपके इम्यून सेल खुद के सेल्स को मारना चालू ना करें। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि जब आपके अगर 100 सेल्स अगर जा रहे हैं ना थाइमस के अंदर, इफ यू आर फाइंडिंग सम 100 टी सेल्स आर गोइंग इनटू द थाइमस, आप ये मान लो कि थाइमस एक टाइप का कॉलेज है, एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें 100 टी सेल्स जा रहे हैं ना, उनमें से 90 ऑफ देम डोंट इवन ग्रेजुएट, मतलब 90 ऑफ देम फेल ओवर देयर। 90 ऑफ देम फेल मतलब क्या? ये मेरे 90 सेल्स वो होते हैं जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते विच इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ। सो दे विल बेसिकली गोइंग टू टारगेट द समथिंग विच गोइंग टू बी अ सेल्फ वन, सेल्फ सेल को टारगेट कर सकते हैं। तो उन्हें आप वहां पे खत्म कर देते हो, उनको आप वहां पे खत्म कर देते हो। जो बाकी जो 10 होते हैं ना, दे अंडरगो इन अ रियल सेंस, दे आर द सेल्स विच अंडरगो डिफरेंशिएशन, एंड ये जाके आपकी बॉडी में काम करेंगे। तो ये याद रखना कि थाइमस में ये सेल्फ नॉन सेल्फ का डिफरेंशिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है, which has been formed by T cells. Okay, you can see how it has been placed closer to the heart between the lungs. Let's see what happened. Thymus is a gland lobular gland located on the dorsal side of the heart. So it is there on the dorsal side of the heart and aorta. Closer to heart, you will find this. Function: Thymus plays a major role in the differentiation of my T lymphocytes. में बड़ा help करता है. Secretes a peptide hormone called as my thymosin. Thymosin plays a major role in my differentiation of my T lymphocytes, which provide the cell
mediated immunity, right? Thymosin also promote the production of my antibodies to promote the humoral immunity, लेकिन ये इसका secondary response है, secondary role है. Main role याद रखना, ये this is my secondary role. कि इसके वजह से you can also find कि आपके B cells will start making antibodies, but that's a secondary role. Thymus is degenerated in the old individuals, resulting in a decreased production of my thymosin. As a result, immune response in old person becomes weak. Something we have discussed. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी हम बता चुके हैं. दे आर ऑल इन रिलेशन टू माय थैमस. ठीक है. अच्छा, क्लास का पेस ठीक लग रहा है? फास्ट नहीं लग रहा आपको क्लास, या स्लो करना है? बता दो. ठीक है सर. ठीक है ना. अगर फास्ट लग रहा हो तो बता देना. पुराने बच्चों को तो आदत हो चुकी है, बट नए बच्चों के लिए स्पेशली अगर क्लास का पेस फास्ट लगे देन प्लीज लेट मी नो दैट. ओके. So that is the story of my thymus over here. Now let's discuss something in terms of my adrenal gland. ये हम यहाँ पे देखते हैं. अब जब भी एड्रेनल ग्लैंड की यहाँ पे बात होगी ना, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको मेक एड्रेनल ग्लैंड ओवर हियर. अगेन काफी चीजें आप देख चुके हो, समझ चुके हो, सो आई एम अज्यूमिंग दैट ये सब आपको याद करने में दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे होती है? किडनी के ऊपर. above knees. राइट. किसी ने कुछ सवाल पूछा है? समवन हैज अ क्वेश्चन. जब अब हो चुका है, ये क्या कह रही है जसनूर? सर अब तो हम भी पुराने हो चुके हैं. इतने पुराने नहीं हो ना बेटा, अभी तो आप, अभी तो इतने पुराने थोड़ी हो आप. कौन कहता है कि 16 साल की एज में कौन होता है जो बोलता है कि हम पुराने हो चुके हैं? कौन है यहाँ पे जसनूर का फ्रेंड? सर आप कह रहे थे ना कि नए बच्चों को लगता होगा कि क्लास फास्ट ना हो. अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो. ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके. मैं सोच रहा हूँ आप थैमस के कॉन्टेक्स्ट में आपके. ऑलराइट ओके. अच्छा, मैं वो सोच रहा था कि ओके गॉट इट. हाँ हाँ राइट. अब जसनूर, अब तो आप भी पुराने हो चुके हो. आप, पल्लवी, अरीशा, ऑल ऑफ यू आर पुराने. राइट. ठीक है. ओके. So now you have a thyroid gland, adrenal gland over here. So you know that the middle part is the medulla and the outer part is my cortex. So the outer part will be having called as my cortex. अब मैं आपको cortex के context में दो तीन चीजें बताना चाहूंगा. cortex में से ना आपके तीन टाइप के यहाँ पे कैटेगरी के आपके हार्मोन आते हैं. So cortex में से let me mention over here from the cortex side. Three types of hormone will come from the cortical area. पहला नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, that is my corticoids. So mineralocorticoids are the one which are a group of hormones which will come from the cortex. That's one thing. So cortex में से एक group of hormone, ये एक group of hormone का नाम है, एक single hormone का नाम है. This is one of the group of hormones or category of hormone, mineralocorticoids. So mineralocorticoids are coming from the cortex वाले part. Cortex में से एक को group आपको यहाँ पे आ रहा होता है, and that is called as my glucocorticoids. Glucocorticoids. और तीसरा ग्रुप जो आपका यहाँ पे आ रहा होता है, that is called as my एंड्रोजन. तो ये सबको आराम से देख लो, आराम से सुन लो, आराम से समझ लो. एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर याद रखना आपके तीन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. You'll have a mineralocorticoids, glucocorticoids and you have एंड्रोजन. These three groups are coming from the cortex वाले पार्ट के अंदर से. अब mineralocorticoids के अंदर आपका क्या याद रखना है, इसमें आपका जो हार्मोन आ रहा है जिसका नाम आप यहाँ पे याद रखोगे, that hormone here is going to be called as my एल्डोस्टेरॉन. इस हार्मोन से आप लोग वाकिफ होंगे अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो. So you have your aldosterone as one of the hormone which we have also revised in the chapter of my excretion. तो अब मुझे यहाँ पे बताओ एल्डोस्टेरॉन का रोल यहाँ पे क्या होता है. कोई मुझे याद करके बताए यहाँ पे कि what is the role of aldosterone by raising their hand. We have done this thing when we were studying a chapter of my excretion. So बताइए मोनिका, क्या होता है इसका रोल यहाँ पे? सर ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं इसको. What does this hormone do? सर हार्मोन ये करता क्या है? सर ये ब्लड प्रेशर को मतलब अगर हाई हो जाए तो लो करने में हेल्प करता है.
कैसे? सर वो पूरा वो बताना है थोड़ा सा सर। जैसे okay, tell me something where it will go and act. हाँ सर ये एंजियोटेंसिन होता है ना, वहां से आता है मतलब। नहीं सुनो ये समझो, एक मेरी बात सुनो कि आपका एंजियोटेंसिन जो आपका था ना, लाइक एंजियोटेंसिन 2 जो आपका था वो बन गया, इमान को भी बन चुका है, उसने आके बोला इसको कॉर्टेक्स को कि चलो रिलीज करो, आप एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करो। अब यस सर। एल्डोस्टेरॉन आपका आ गया ब्लड के अंदर। नाउ यू हैव टू टेल मी ये एल्डोस्टेरॉन जाके कहाँ पे एक्ट करेगा? डीसीटी पे जाके अटैक करे, मतलब डीसीटी पे जाके बोलेगा कि Na+ आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ एंड H2 को रीअब्सॉर्ब करने को बोलेगा उनको। Right. It will, very true. It will go and tell the DCT to reabsorb the Na+ ions and secrete out potassium ions. And when you reabsorb the sodium ions, now what will happen along with that? The water will get also reabsorbed. अब क्योंकि आपका पानी भी आपका reabsorb होगा वहां पे, because of that you will find the blood volume is going to increase and you will find your ultimately the blood pressure is going to increase over there. तो yes, बिल्कुल सही आपकी बात है यहाँ पे, बट आपको याद रखना है एल्डोस्टेरॉन विल गो एंड टेल द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो मैं आपको बाद में मेंशन करता हूँ ये चीज अलग से। सो इसको हम कहते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो आप समझ जाओ इस बात को कि ये जाके मिनरल्स के ऊपर एक्ट कर, बेसिकली इट विल गोइंग टू रेगुलेट द मिनरल कंसंट्रेशन। सो एल्डोस्टेरॉन जाके आपके डीसीटी को जाके कहता है टू रीएब्सॉर्ब द सोडियम आयंस, सिक्रेट आउट द पोटेशियम आयंस, और जब सोडियम आयंस को आप रीएब्सॉर्ब करते हो तो उनके साथ साथ पानी का भी रीएब्सॉर्प्शन आपका वहां पे हो जाता है। बट आपको याद रखना है कि सोडियम आयंस का रीएब्सॉर्प्शन वो कराएगा वहां पे। सो ये चीज याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय एल्डोस्टेरॉन। देन वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, यू हैव सम नेम्स व्हिच विल कम इन दिस एंड दोज नेम्स कैन बी माय cortisol, corticosterone and cortisone। ये 3 हार्मोन आते हैं विद इन द कैटेगरी ऑफ माय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आप एक नाम यहाँ पे याद रखना, एल्डोस्टेरॉन, दैट्स द ओनली नेम आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आपके 3 नाम आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। ये 3 नाम आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। अब नाम से पता चलेगा कि ग्लूकोज को लेके इनका कुछ यहाँ पे काम होगा, दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ रोल इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज। सो यू हैव दिस 3 हार्मोन्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू हैव टू नो वन थिंग वेरी क्लियरली, आउट ऑफ दिस 3 हार्मोन्स cortisol is the one which will be produced in the highest amount. Out of these 3 hormones, we will find the cortisol will be produced in the highest amount. मतलब 95% आपका cortisol ही होता है। ये 2 का अमाउंट तो बहुत कम होता है यहाँ पे। सो 95% जो आपका आ रहा होता है ना, वो आपका यही होता है। बाकी 2 जो आपके यहाँ पे होंगे, that is going to be the in a very insignificant amount में आपके बनाए जाते हैं। Now let's try to understand कि मेरा cortisol यहाँ पे क्या करेगा। Let's try to see that thing over here. अगर मैं डिस्कस करता हूँ समथिंग इन टर्म्स ऑफ cortisol, this will play an important role in my gluconeogenesis. My cortisol will play an important role in my gluconeogenesis. So gluconeogenesis के अंदर यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब सवाल आता है कि टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। आप ये बात याद रखना कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर ब्लड के अंदर लेवल कम हुआ, देन आपको उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। You need to have a right amount of glucose in the blood. Without that, the things won't work. Simple as that. So आपके ब्लड के अंदर एक सही अमाउंट में आपको ग्लूकोज चाहिए हमेशा, राइट? समझो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज काफी कम हो चुका है, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट योर ब्रेन इज ओनली गोइंग टू यूज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपके मसल एक टाइम पे कुछ और बर्न कर सकते हैं। योर मसल्स कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन टू मेक एनर्जी, your liver can break down some lipids to make the energy, your body part can use something else as a source of energy, but not the glucose, not the brain. Brain को हमेशा चाहिए आपके यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। विदाउट ग्लूकोज द ब्रेन वोंट फंक्शन। वही तो होता है, इसलिए जब किसी ने फास्ट रखा होता है, सुबह से कुछ खाया नहीं होता तो चक्कर आके गिर जाते वो लोग। That's what you find happening with them, right? Your brain needs glucose molecules over there, and to make that happen, you need to have a right amount of glucose in the blood all the time. क्योंकि ब्रेन सेल सिर्फ ग्लूकोज को ही अंदर आने देते हैं। Nothing else you will be finding getting inside the brain. No protein, no lipid will come and will be broken down. आप नहीं बोल सकते ब्रेन को कि इस्तेमाल कर लो थोड़ा लिपिड और अपनी बना लो यहाँ पे एनर्जी। You cannot say that. So in that case, I need to have a right amount of glucose in the blood. So let's see what will be happening in this.
अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज खत्म हो गया है तो वो टाइम पे क्या होगा आपके बॉडी में, यू विल हैव अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड आपके पास होंगे, प्रोटीन होगा आपके पास, राइट, यू विल हैव अमाइनो एसिड, यू विल हैव योर ग्लिसरॉल. So your molecules like amino acid and glycerol can be converted into your glucose molecule. They can be, these are my like non-carbohydrate molecules ना. Amino acid मेरा carbohydrate नहीं है. Glycerol is not my carbohydrate. So my amino acid and glycerol like molecule, I can convert them into my glucose. I can convert them into glucose, और मैं short में आप लिखता हूँ, I can convert them into carbohydrates. अब क्योंकि मैं इन्हें यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट यू कॉल देम एज जो भी आप कहना चाहो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ग्लूकोनियोजेनेसिस. इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये करना इंपॉर्टेंट होता है, ये करना आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी फाइंडिंग योर ग्लूकोज लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ब्लड. और जब ग्लूकोज लेवल आपका ब्लड में इंक्रीज होगा वो आपको चाहिए. This is what happens with the cortisol. So cortisol का काम होता है आपके यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना and to make the glucose out of my non-carbohydrate molecules. So you can see over here, these are all my non-carbohydrate glucose चाहिए ना कहीं से भी. So they are all my non-carbohydrate biomolecules को इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पे. So non-carbohydrate biomolecules इनको हम करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल and using them you can convert them into the glucose molecules. तो याद रखना, that is what my cortisol is known for. Cortisol को हम इवन कहते हैं as a stress hormone. ये भी याद रखना, जब आपको stressful condition में आप आते हो तो cortisol आपका आके अपना काम करना चालू करता है. So cortisol is also called as my stress hormone. So this is something I can mention somewhere over here, that cortisol को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे as your stress hormone. एक और बात याद रखना, cortisol also have a property of anti-inflammatory in nature. It will have property of anti-inflammatory in nature. So anti-inflammatory इसका nature होता है. And एक और चीज याद रख लो यहाँ पे, it can also have property of immunosuppression. It can also have property of immunosuppression. So immunosuppression is also another property of my cortisol. अब cortisol आपका आ रहा है एज स्ट्रेस हार्मोन. ये आपकी बात सेंस करती है. क्यों पता है? अगर आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गए तो ग्लूकोज चाहिए ना फिर आपको, आपके मसल्स को इस्तेमाल करने के लिए, ब्रेन को इस्तेमाल करने के लिए ग्लूकोज. तो टाइम पे ये आएगा एंड इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. एंटी इन्फ्लामेशन के लिए काम करता है, इस तरीके से काम करता है. इट विल आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ माय इम्यूनोसप्रेशन का भी इसके पास प्रॉपर्टी होता है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, दैट इज योर कॉर्टिसोल. ठीक है, अगर आप याद करोगे ना, इफ यू जस्ट ट्राई टू गो बैक एंड रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जब हम वहां पे प्लेसेंटा पढ़ते हैं ना, तो प्लेसेंटा जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी हम ये इस बात का जिक्र करते हैं दैट यू विल हैव योर कॉर्टिसोल कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा. बेसिकली सीआरएच आएगा प्लेसेंटा में से, जो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाएगा. और कॉर्टिसोल का लेवल आपका जब बढ़ता है मदर की बॉडी के अंदर, सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू व्हाट, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ताकि वो ग्लूकोज प्लेसेंटा के थ्रू जाए आपके फीटस तक. तो ये चीज भी आप देखते हो. इफ यू जस्ट रिकॉल विद व्हाट वी हैव डन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट कॉर्टिसोल is also a very important component during the pregnancy, which will ensure that you have a good amount of glucose formation inside the blood, जो फीटल के साइड पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो मदर के साइड से फीटल के साइड पे जाएगा उसे इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, सो इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? नाउ टेल मी, इज द स्टोरी अबाउट कॉर्टिसोल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ये मालूम होना चाहिए अच्छे से, व्हाट इज माय कॉर्टिसोल इज डूइंग, क्यों कर रहा है, और इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी क्या होती है. दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. स्ट्रेस हार्मोन में यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी है नेचर के अंदर, आई एम गोइंग टू हैव अ रोल इन माय इम्यूनोसप्रेशन. दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 3 आते हैं आपके यहाँ पे हार्मोन. कलेक्टिवली सबका रोल यहाँ पे सेम ही होता है, बट कॉर्टिसोल विल प्रोड्यूस इन अ वेरी हाई अमाउंट. तो ये आपका हो गया आपका दूसरा ग्रुप. सो दूसरे ग्रुप में आपके 3 हार्मोन गए. ये जो थर्ड ग्रुप आपका यहाँ पे है ना, दैट इज योर एंड्रोजन. में एंड्रोजन ही आता है सिर्फ आपका यहाँ पे. So this is going to be your sex hormone. Androgen is nothing but my sex hormone, which will be released in a small amount from the cortex. So cortex से आपका एक small amount के अंदर आपका androgen आएगा, which is nothing but your sex hormone. That's it. इसमें और कुछ अलग सा है नहीं.
इट डिसकन्वर्ट्स इनटू, इन द फीमेल्स के अंदर ये आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्स के अंदर इट कैन कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। तो ये याद रखना आपको यहाँ पे, दीज आर द स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ माय एड्रेनल कॉर्टेक्स। इतनी बात याद रखो, इसको हम वापस से आगे पढ़ते हैं। So one pair of adrenal gland located at the anterior part of the kidney. The gland is composed of two type of tissue. The centrally located tissue is called as my adrenal medulla, and the outside में जो आपको लिखा है यहाँ पे, that's my adrenal cortex. Now, तो हमने ये चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मेडुला आपके यहाँ पे क्या करें, मेडुला रिलीज माय टू हार्मोन्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलेंगे एज माय कैटेकोलामाइन्स, दैट कॉल्ड एज माय कैटेकोलामाइन्स। और याद रखना ये जो दो मेरे हार्मोन है ना, इनको बनाने के लिए जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, मेरा यहाँ पे अमाइनो एसिड, ये दो हार्मोन बनाने के लिए जो मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड इस्तेमाल करूँ, दैट्स माय ट्रिप्टोफैन। सो ट्रिप्टोफैन की मदद से आप ये दो हार्मोन्स अपने यहाँ पे बना सकते हो। सो दिस इज अ प्रिकर्सर फॉर माय कैटेकोलामाइन्स। इसकी मदद से, इसका इस्तेमाल करके, प्रिकर्सर का इस्तेमाल करके आई कैन मेक द कैटेकोलामाइन्स। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो। ये बात हम लोग जानते हैं दैट माय एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन माय फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म। जब भी आपकी बॉडी के अंदर, हाँ जी पूरा बताइए, बोलिए बोलिए पूरा। फिर से एक्सप्लेन करना, अभी क्या बोला? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जब आप बात करते अबाउट द मेडुला में से आपके दो हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। ये वही हार्मोन आते हैं जब आप बंजिंग जंपिंग करने के लिए जाते हो, लड़ रहे हो तो किसी के साथ, फास्ट बाइक आप ड्राइव कर रहे होते हो, यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ दोस थिंग्स, देन यू विल फाइंड दिस टू हार्मोन आर रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम इन अ हाई अमाउंट। नाउ दीस टू हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय कैटेकोलामाइन्स। ये हार्मोन बनाए किस में से जाते हैं, तो याद रखना ये आपके बनाए जाते हैं अमाइनो एसिड में से। These hormones are produced from the amino acid, and that amino acid is called as my tryptophan. So tryptophan as a amino acid मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, और इसको इस्तेमाल करके I will be making my epinephrine and norepinephrine. This is what you have to know. ये चीज आपको मिलती है आपके मेडुला के अंदर से। Now, यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, somewhere over here, that when you talk about my catecholamines, that is your epinephrine, norepinephrine, so I'll just write over catecholamines. When I talk about my catecholamines, then there's one thing you have to know in this. आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनका कलेक्टिवली लोग क्या क्या बॉडी में कर सकते हैं। Now there's one thing you know that they will play a role in my, they will bring you in my state of fight and flight. ये आपको fight and flight वाली कंडीशन में लेके आ सकते हैं। They can bring you in a state of a fight and flight. So fight and flight की स्टेट में आपको ये लेके आ सकते हैं। That's one thing you know that. Second thing you have to know here is that catecholamines are the ones which what they do inside the body. So first of all, they can do something like my dilation of pupil. अगर ये आपके यहाँ पे एक्टिव हो रहे तो फाइट एंड फ्लाइट में आपका क्या क्या होता है? So you find dilation of pupil, you can find happening inside the body. डायलेशन ऑफ पीपल करने का यहाँ पे पर्पस क्या होता है? आप एक बात समझो यहाँ पे कि समझो अगर आपके सामने भालू आ गया तो वो टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही होगी, राइट? अगर आप सोए नहीं हो तो भी आपको नींद नहीं आ रही होगी, यू आर विल बी वेरी एक्टिव। सो जब आप बहुत ज्यादा जब आप एक्टिव होते हो, जब आप डरे हुए होते हो ना, देन यू विल हैव अ डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आपकी प्यूपिल्स काफी बड़ी हो जाती है ताकि वो हर एक इंफॉर्मेशन जो है ना आपके परसीव कर सके आपके सराउंडिंग की। सो डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग व्हेन यू हैव अ, when you find adrenaline and noradrenaline will be there in the bloodstream. So ये आपको होते हुए आपको मिलता है. So you can see in their eyes that their eyes have got dilated. So that will be happening because of these two hormones. That's one thing, right? Strong heart contraction. आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली होगा. Jono hormone will play a very important role in making sure that your contraction of heart is happening much more strongly. आप ये बात जानते हो कि अगर हार्ट अगर ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा. अगर ज्यादा ब्लड निकलेगा देन आपका कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा. वैसे नॉर्मली आपका हार्ट रेस्टिंग स्टेट में कितना ब्लड निकालता है? डॉक्टर साहब बताइए. इन रेस्टिंग स्टेट हाउ मच ब्लड इज पंप बाय योर हार्ट, बाय योर वेंट्रिकल्स? क्या होता है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है?
20 ml. Why? 70 ml. 70 ml इज माई स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। ये आपका 100 और 110 तक जा सकता है, काफी टाइम लग रहा है वैसे आपने बताने में। सो याद रखना, योर स्ट्रोक वॉल्यूम कैन गो बियॉन्ड दैट। आपका 100 ml तक आपका ब्लड आपको निकल सकता है पर बीट। सो पर बीट अगर आपका 70 ml अगर आपका ब्लड निकल के आ रहा है, देन यू शुड नो दैट द नंबर कैन गो अराउंड 100, 110। तो कैसे हो सकता है? व्हेन यू हैव अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग स्ट्रांगली। सो स्ट्रॉन्ग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कैन हैपन बिकॉज ऑफ माय एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन की वजह से। दैट्स वन मोर थिंग यू हैव टू नो, राइट। देन यू विल फाइंड adrenaline and non-adrenaline will play a very important role in my breakdown of my glucose molecules, or I would say your breakdown of glycogen, breakdown of your glycogen into glucose, ये चीज आपकी की जाती है बाय दीज टू हॉर्मोन्स। अब ये करना यहाँ पे जरूरी है। देखो, अगर आप स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट में आप आ गए, अगेन सेम थिंग, अगर भालू आ गया आपके सामने, तो वो टाइम पे आपको चाहिए एनर्जी। यू नीड एनर्जी टू रन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। लड़ना नहीं है, लेकिन वहां पे भागने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका ग्लूकोज यहाँ पे। तो क्या होगा आपका, जब ये दोनों हार्मोन कैटेकोलाइमेंट्स आपके ब्लड के अंदर आएंगे, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द ग्लाइकोजन। और जब आपके ग्लाइकोजन को आप ब्रेक डाउन करोगे, यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज बीन फॉर्म्ड। और ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करके आई कैन एक्चुअली एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, और आई विल पिक अप अ फाइट विद द वेयर, व्हाटएवर आई हैव टू डू। सो ये चीजें करने के लिए आई नीड दिस हार्मोन ओवर देयर। सो ये बात भी याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। एक और चीज याद रख लो, अगर इतनी याद रख पा रहे हो तो, इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे टाइम पे आप रिलैक्स तरीके से ब्रीथ नहीं कर रहे होंगे आप, राइट, इन फ्रंट ऑफ योर बेयर। बेयर भी नहीं दिखा मुझे कभी हिमाचल में। आई नो होते हैं, बट couldn't find one. So it will increase the rate of breathing as well. When you find these two hormones coming in the bloodstream, you'll find the breathing rate is going to increase. Basically यहाँ पे करता क्या नहीं है, you have your bronchi, bronchioles, you know that. So bronchioles and bronchi को dilate कर देगा। अगर आपके bronchioles और bronchi अगर आपके dilate हो रहे, then ultimately you can actually breathe very easily over there. So that is something which will be happening in this. So you can find the increase in rate of breathing can be seen happening also along with this things. चार चीजें याद रखना, dilation of pupil, strong heart contraction, breakdown of glycogen into glucose and increase the rate of breathing. ये कुछ चीजें आपकी की जाती है by my catecholamines or my epinephrine and norepinephrine. This is what you also find happening in a state of fight and flight. ये सब चीजें आपको होते हुए मिल जाएंगी। अब बताओ, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. इसमें अगर कोई चीज गड़बड़ लग रही हो, देन प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे। नाउ अभी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ नहीं रहा, आई एम नॉट रीडिंग द स्टेटमेंट्स राइट नाउ बिकॉज आई वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व की एश्योरेंस मिलेगा, तभी आपका यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। बाकी सब आप बाद में पढ़ सकते हो, दे आर द सेम थिंग व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, सो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हम घर नहीं जाएंगे। सो बताइए इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ रोल इन सिग्निफिकेंट रोल इन माय ऑस्टियोपोरोसिस? कौन से हार्मोन यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन माय ऑस्टियोपोरोसिस? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। चलिए, quickly raise your hand to answer this. I cannot see. हाँ ठीक है, बताइए सिद्धिरा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सी। आपको सी लग रहा है? जसूर, आपको क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. Right. So estrogen and your parathyroid hormone are the two hormones which will play a significant role in my osteoporosis. PTH तो आप जानते हो क्या करता है? ईस्ट्रोजन में मैं आपको बता चुका हूँ कि फीमेल्स के अंदर इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बोन हेल्थ। तो अगर ये Yes, नहीं sir. होता ना, देन देयर इज अ लाइकली चांस ऑफ हैविंग osteoporosis. So that's true. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। GnRH a hypothalamic hormone needed in the reproduction axon. आराम से देखो सवाल को, see the statements over very carefully and then tell me the answer. GnRH as a hypothalamic hormone needed in the reproduction axon, ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है?
बताइए जसनूर, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। अमनप्रीत, आपको क्या लग रहा है? ए ऑप्शन। जानवी? ए होगा। So GnRH, a hypothalamic hormone needed for reproduction, will act on the anterior pituitary gland. It will go and act on the anterior pituitary gland over here. ये जाके act करेगा आपके anterior part के ऊपर and will stimulate the secretion of my LH and FSH. ये ही आपका ये करेगा. That's what my GnRH is known for. It will go and tell the anterior part to start releasing my LH and FSH वहाँ से, and then those two hormones will come and will do their job. That is something they have been known for. So ये चीज आपका करता है आपके यहाँ पे GnRH. और कहीं पे तो एक्ट करेगा नहीं आपका यहाँ पे. It will never going to act on the posterior part, neither on the oxytocin, तो कभी यहाँ से आएगा नहीं. So you'll find option A becomes my correct answer in this. चलिए. A temporary endocrine gland in the human body. इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है एक आपका temporary endocrine gland? Raise your hand to answer this. Take your time, याद कर लो कौन है आपका यहाँ पे temporary endocrine gland. बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर कार्पस ल्यूटियम। एंड सिद्धरा, आपको क्या लग रहा है? ई। और ये क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। Right. This is the hormone which is going to release the progesterone in the blood. So yes, this will be my correct answer in this. So temporary endocrine gland is going to be my corpus luteum. बताओ ध्यान से. You can answer this. कर सकते हो आप इसका आंसर. Name the peptide hormone which acts mainly on the hepatocytes, adipocytes, and enhances the cellular glucose uptake and utilization. तो कौन सा मेरा यहाँ पे हार्मोन है? मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इनमें से कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे होगा जो हेल्प करता है सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए. इट विल गो एंड टेल द सेल्स कि चलिए चलिए ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करिए, बिकॉज आप ग्लूकोज को ऐसे ब्लड में खुला नहीं छोड़ सकते हैं. याद रखना, ब्लड में आप ग्लूकोज को खुला ज्यादा छोड़ नहीं सकते. होना चाहिए एक सर्टेन लेवल तक, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू द सेल्स. सो बताइए अपूर्वा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? इंसुलिन. एंड क्या बाकी दो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे एग्री करेंगे इंसुलिन के साथ? यस सर. Yes, sir. Insulin is going to be a correct answer in this. Yes, because of this particular hormone, you will find you can bring the glucose back into the cells. Hepatocytes, adipocytes, cells के अंदर आप इन्हें आप भेज सकते हो. Then, the posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because posterior pituitary gland is a not true endocrine gland. क्यों? ऐसा क्यों होता है? Why we say that कि ऐसे ही माने में आपकी ग्लैंड यहाँ पे नहीं है? Take your time and tell me. Alright. बताइए जसनूर, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर बी ऑप्शन. बैटमैन वाला बी कह रहे हो ना आप? यस सर. जानवी, आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? Yes, sir. यस सर. तो आपका ओके, सो आप कह रहे हो कि इट इज गोइंग टू स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन. तो यहाँ पे जो हार्मोन स्टोर किए जाते हैं वो हार्मोन बनाए कहाँ पे जाते हैं? हाइपोथैलेमस. याद रखना, राइट. इट इज विल बी मेड इन माय हाइपोथैलेमस. सो जो भी आपके यहाँ पे दो हार्मोन है, दो ही आपके यहाँ पे हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, एंड दीज टू हार्मोन्स आर मेड इन माय हाइपोथैलेमस. सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज माय करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट. Which of the following hormone is not involved in sugar metabolism? इनसे कौन सा मेरा यहाँ पे हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता? कोई रोल नहीं इसका यहाँ पे शुगर के मेटाबॉलिज्म से इन्वॉल्व करने के लिए. ये भी आप कर सकते हो, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है. सो यू कैन एक्चुअली आंसर दिस. Which of this following hormone is not involved in my sugar metabolism? बताइए जसनूर, what will happen? What is the answer in this? सर डी ऑप्शन. आप देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है? Sir D. क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री करेंगे? बाकी बच्चे जो यहाँ पे Yes, समझ, sir. जिन्होंने क्वेश्चन दिखा है. नाउ टेल मी समथिंग. ये एल्डोस्टेरोन फिर करता क्या? तमनप्रीत, आप कह रहे हो कि ये तो नहीं कर रहा है यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल के साथ काम, तो ये करता क्या? Sir, वही सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन
नहीं, हाँ, कहाँ से? potassium. कहाँ से? This convoluted tubule of the blood. Right. That is what my aldosterone is going to be doing over here. True. तो इसका शुगर के साथ कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, बाकी सबका रिलेशन है यहाँ पे. Cortisone, glucagon, insulin will have some kind of role with sugar metabolism, but not aldosterone. Right. चलो. Which of the following hormone, though synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland? बनाया कहीं और जाता है, but इसको रिलीज आपके यहाँ पे मास्टर ग्लैंड करेगा. बोलिए बोलिए अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सी. आपको C लग रहा है? option. जसनूर आपको क्या लग रहा है? ओके, जसनूर आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन. इट इज माय एंटी डायरेटिक हार्मोन. यहाँ पे जो आपका हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या होगा वैसे? द हार्मोन व्हिच इज कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, द नेम ऑफ द हार्मोन इज गोइंग टू बी व्हाट? Vasopressin. Vasopressin. राइट. और ये किस पे जाके एक्ट करता है? Collecting duct or still convoluted tubule. डीसीटी. ट्रू. कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी के ऊपर ये जाके एक्ट करेगा. सो माय वेसोप्रेसिन व्हिच इज गोइंग टू बी माय एडीएच बनाया जाता है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, बट इसे स्टोर हम करते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर. सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. अगर आपसे पीवाईक्यूज अगर आपके हो पा रहे हैं, दैट्स अ प्रॉमिसिंग साइन कि आप फ्यूचर में भी इन सवाल को आप संभाल सकते हो. टेक योर टाइम, केयरफुली आंसर दिस. कर सकते हो आप ये, इतना अगर कर सकते हो तो ये भी आपसे हो जाएगा. Fight and flight reaction causes activation of. Flight and fight reaction causes activation of what? क्या लग रहा है जानवी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन. आपको शी लग रहा है? क्या सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. सी will be my correct answer. आपका एड्रेनल मेडुला से you will find that leading to increased secretion of epinephrine, norepinephrine. अब मुझे बताओ कि जब आप फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में आप आते हो तो कौन सी 4 इवेंट्स आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. व्हेन यू कम अक्रॉस द स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, व्हाट आर द 4 थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी व्हिच एक्चुअली रेडी करती है आपको लड़ने के लिए? बताइए सिद्रा, व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? बताइए. Strong heart contraction, dilation of pupil, breakdown of glycogen into glucose. एक और चीज. Increase the rate of breathing. बहुत सही. These are the 4 things I will find happening in a state of fight and flight, which are super essential अगर आपको लड़ना है या भागना पड़े वहां से. So ये याद रखना. These are 4 things you have to know, right? और ये सब करने के लिए आपके sympathetic nerves भी आपकी मदद करते हैं. ये also you have a sympathetic nerves which will actually also help in bring you in a state of fight and flight. चलो, 24 घंटे का जो आपका साइकिल होता है ना, स्लीप वेक साइकिल, कौन करता है उसे रेगुलेट? यहाँ पे ये भी हम देख चुके हैं, बीच में हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं है. वी हैव डन दिस थिंग. कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, उनका भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे. आई हैव एक्सप्लेन यू दिस थिंग. सो अगर आज की क्लास में नहीं पढ़ा, हमने पहले पढ़ चुके हम लोग. यहाँ पे बोला था ना कि आप सीनियर लोग काफी जल्दी टाइम पे उठ जाते हैं. दे हैव वेरी सिंक्रोनाइज्ड स्लीप वेक साइकिल. बताइए जानवी, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? सर मेलेटोनिन. और ये जानवी आ कहाँ से रहा होता है? नहीं जानवी नहीं, बताओ कहाँ से आ रहा होता है ये मेलेटोनिन? अरे कोई बात नहीं, बताओ जसनूर, कहाँ से आ रहा था मेलेटोनिन? सर ब्लड में जो पीनल ग्लैंड होता है उसमें से. ब्रेन में. ब्रेन में Yes. पिनल ग्लैंड, जहां Yes, से आपके यार होगा. वो पिनल ग्लैंड ब्रेन के कौन से हिस्से से जुड़ा हुआ होता है? और पार्ट ऑफ ब्रेन इज बीन कनेक्टेड टू द पिनल ग्लैंड. सो वो कौन सा हिस्सा होता है? Forebrain. नहीं नहीं. एपिथैलेमस. अरे फोरब्रेन तो बहुत बड़ा सा होता है बेटा. सो एपिथैलेमस इज द स्ट्रक्चर is going to be connected with the pineal gland. This is the one which is connected to the pineal. ये regulate करता है उसे. ठीक है? That is something we'll find in this. Right. चलो next. बताओ, match the source gland and its respective hormone and function. Select the correct one. Match the source gland with respect to hormone and function and select the correct one. सारे आपके लाइक सोर्स, हार्मोन और फंक्शन यहाँ पे आपको सही बताना है. आसान है. Shouldn't take you more than 45 seconds to answer this kind of question.
बोलिए तवनप्रीत। सर बी ऑप्शन। पूछ रहे हो बता रहे हो? सर बता रही। क्या सब लोग बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. It is my posture pituitary, right? Going to release my vespertine as a hormone and stimulate the reabsorption of my water in the DCT, distal tubules of the nephron. So that's going to be true answer. That's true by every means. Yes, ये आपको यहाँ पे सही हो जाएगा. Which of the following represent the action of insulin? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे हार्मोन है जो आपका इंसुलिन के एक्शन को बता रहा है? अभी हमारा पैंक्रियास का बाकी है, तो आप थोड़ी चीजें यहाँ पे आप समझ पाओगे, बट स्टिल एनीवन वांट टू आंसर दिस? क्या होगा इसका पोटेंशियली आंसर यहाँ पे? बताओ जसनूर। सर ए ऑप्शन, नहीं बी। एक काम करते हैं, इसका आंसर वैसे बी आएगा यहाँ पे, कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है बाय फॉर्मिंग द ग्लाइकोजन। मतलब बेसिकली ये प्रमोट करता है कि आप देखो, इंसुलिन का काम क्या होता है ना, कि अगर आपके ब्लड में इंसुलिन है, मतलब समझो आपने अभी भी रसगुल्ला खाया थोड़ी देर के बाद, खाने के बाद, यू हैव अ हैंड ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, इवन आफ्टर डिनर यू हैव अ हैंड ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो ग्लूकोज के लेवल को आप मेंटेन करते हो, उसे लेके जाते हो सेल्स के अंदर। सो बेसिकली इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब ग्लूकोज का लेवल आपका शूट होता है ना, ऊपर जाता है, तो इंसुलिन विल कम एंड विल डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो आपको पहले याद रखना है दैट इंसुलिन विल ऑलवेज हैव अ रोल इन डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब डिक्रीज करके ये डालता है सेल्स के अंदर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि आपके बॉडी के अंदर यू हैव योर मसल्स एंड यू हैव समथिंग लाइक योर लिवर। इन दोनों में कॉमन यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे स्टोर करते हो अपने ग्लाइकोजन को। याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था बहुत पहले, that Yes, muscles sir. and liver are the one where you find the glycogen are getting stored. ग्लाइकोजन का यहाँ पे करते हो अपने यहाँ पे स्टोरेज। अब ग्लाइकोजन का अगर मैं यहाँ पे अपना स्टोरेज यहाँ पे कर रहा हूं, तो ये करने के लिए मेरा ग्लूकोज या मेरा इंसुलिन यहाँ पे बना रोल प्ले करता है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है ना, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो तो उसको कहाँ पे डालेगा, इट विल कीप देम इनटू द हिपेटोसाइट्स या मसल्स में, उसे उन्हें वहां पे भेजेगा। और जब आप ग्लूकोज को भेज रहे हो, एक्सेस ग्लूकोज को आप मसल में भेज रहे हो या लिवर में भेज रहे हो, देन व्हाट इज हैपनिंग, वहां पे आप स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, समथिंग आई विल टेल यू ओवर हियर इटसेल्फ, कि आपको जो ग्लूकोज होता है ना, याद रखना, इफ यू हैव एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके पास काफी ज्यादा है, देन आप उसे स्टोर कर दोगे, यू विल स्टोर देम इन अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ताकि फ्यूचर में आप इसका इस्तेमाल कर सको, so that you can use them in the future। and इनको जो आप स्टोर करते हो इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इनको आप स्टोर करते हो दो लोकेशन के ऊपर जो आप ऑलरेडी जानते हो। you store them in the muscle, you store them in the liver। all right, चलिए, तो नाउ इसका आंसर आप मुझे बताइए यहाँ पे। select the correct matching of a hormone and its source। चलो मैं आपके यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, या फिर नहीं करता, आप ही कर सकते हो इसका आंसर, आप सही से बता सकते हो, कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा। बोलिए अपूर्वा, बताइए। Second option. जसनूर। सेकंड ऑप्शन सर। अपूर्वा मुझे ये बताइए कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है इसका आंसर यहाँ पे? क्या देखा आपने सी में, क्या आपने लगा यार ये तो नहीं हो सकता? मैंने तो बी तक की देखा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना एग्जाम के अंदर, वो बात आपकी ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, बट एग्जाम में ऐसा मत करना। यू ऑल्सो लुक एट द ऑप्शन सी एंड डी एज वेल। ठीक है, तनप्रीत आप बताना चाहोगे आपने ऐसे सी में क्या देखा जो आपको दिख लिया कि यार ये तो नहीं हो सकता? तो वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिखा है ना, तो वो नियोजेनेसिस वाला नहीं होता? नहीं बेटा नहीं, आप जो देख रहे हो वो लॉजिक आपका सही नहीं है। नियोजेनेसिस के लिए तो आपका कॉर्टिसोल होता था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए आपका कॉर्टिसोल होता था। दैट्स नॉट अ लॉजिक ओवर हियर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, एनीवन कैन टेल मी व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर सी? जस्ट आप बताना चाहोगे व्हाई यू कैन नॉट गो फॉर सी ओवर हियर? सिद्रा। सर अल्फा सेल। हाँ, आपके बीटा सेल आपके यहाँ पे बनाते हैं आपके यहाँ पे इंसुलिन। यस सर। अल्फा सेल इज समथिंग व्हिच विल मेक द ग्लूकागॉन, और यहाँ पे आपका बीटा सेल यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगर यहाँ पे बीटा सेल लिखा हुआ है, देन यू रियलाइज दैट यू कैनॉट गो फॉर दिस ऑप्शन ओवर देयर. सो बीटा सेल्स आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्मिंग योर ग्लूकागोनेट्स और इंसुलिन, इसलिए आपको ये आंसर बनेगा नहीं आपका यहाँ पे. यहाँ पे जब बीटा सेल इन्होंने यहाँ पे लिख दिया ना, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार ये तो मेरा यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता, राइट. देन वी हैव ओवर हियर प्रोलैक्टिन. तो आप समझ सकते हो प्रोलैक्टिन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट. सो प्रोलैक्टिन कहाँ से आ रहा होता है? एंटीरियर पीरियड Anterior pituitary. That's the thing, right? वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पार्ट से आ रहा है, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. यहाँ पे फंक्शन गलत हो गया. इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ऐसा थोड़ी कर रहा था वो. यस सर. ये आप यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनल मेडुला, इंक्रीज द हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, सब कुछ आपका भी इंक्रीज करेगा, विल ब्रिंग यू इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. सर हाँ बोलो. सर एक बार वो बताना कि पीनल ग्लैंड कहाँ किससे कनेक्ट होता है? पिनल ग्लैंड वाज कनेक्टेड विद एपिथेलेमस. जब अगर आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था ना फोरब्रेन, सो हम क्या करते थे, फोरब्रेन में दो चीज पढ़ते थे, सेरेब्रम एंड डायसेफिलॉन. डायसेफिलॉन के अंदर वी यूज्ड टू राइट थ्री थिंग्स, एपिथेलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. और Yes, जो sir. एपिथेलेमस जो आपका यहाँ पे था ना, दैट वाज सम अ स्ट्रक्चर व्हिच वाज कनेक्टेड विद द पिनल ग्लैंड, उसे रेगुलेट करता था. ये पिनल ग्लैंड के साथ आपका कनेक्टेड था और इसे वहां पे रेगुलेट करता था. तब हमने ये पढ़ा था. ओके सर. Then we have the function of oxytocin is to help in what? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? सिंपल ये तो बताओ पूर्व. हाँ पूर्वा बोलो. Option A. एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एक ही साथ एग्री करेंगे, सिद्रा एंड ऑल द अदर टीम मेंबर यहाँ पे. यस, इट इज माय चाइल्ड बर्थ. यस सर. फंक्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा बाय स्ट्रॉन्ग यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाट दे डू. हाँ ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताया था मैंने क्लास के अंदर ही. सो थिंक वाइजली एंड टेल मी. बताइए जसनूर, क्या लग रहा है? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? चली गई मेरी आवाज, पता चला आ मेरी रही नहीं. है सर, आ रही है. हाँ बताओ बताओ जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? जसनूर तक आवाज नहीं आ रही. तो अंकित बताओ. ऑप्शन. डी कह रहे हो आप? यस सर. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? डी सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या कहते हो आप लोग? सही सही लग रहा है. लग रहा है. इट इज द करेक्ट आंसर. कैल्शियम का काम ही यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे टू लो डाउन द कैल्शियम लेवल. अब कोई मुझे हैंड रेस करके ये बताओ कि कैल्शियम आपका आ कहाँ से रहा होता है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, और ये कैसे करेगा लोअर कैल्शियम लेवल को, ये भी बता दो. आ कहाँ से रहा है एंड हाउ इट्स गोइंग टू लो डाउन द कैल्शियम लेवल. सो बताइए अपूर्वा, कहाँ से आ रही है? तो पैरा फॉलिकुलर सेल्स से, जिन्हें सी सेल्स भी बोलते हैं, और ये कैल्सिटोसिन किडनीज और इंटेस्टाइन को बोलता है कि अब कैल्शियम आयन ब्लड में ज्यादा है तो एब्जॉर्ब नहीं करने. Right. It will go and tell the intestine kidney that no need to reabsorb the calcium ions, let them go. That's how you low down the calcium level. बिल्कुल सही. और एक और बात आपको बताना चाहूंगा एडिशनल, कि अगर कैल्सिटोनिन के सेल्स को अगर हम निकाल देना बॉडी में से, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. नथिंग हैपेंस. ठीक है. ऑलराइट. Which hormone stimulate the secretion of milk from the female? ध्यान से आंसर करना, गलत नहीं चाहिए मुझे इसका आंसर. बताइए तनप्रीत, बोलिए. ऑक्सीटोसिन. ओहो, आप एक हीरो यहाँ पे. जानवी, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर यही होगा. यही है इसका आंसर. इट इज माय ऑक्सीटोसिन व्हिच विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मिल्क. क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन कर रहा है आपके यहाँ पे स्टिमुलेट आपका सिक्रेशन ऑफ मिल्क, एंड दैट इज समथिंग विल बी डन बाय माय ऑक्सीटोसिन. ये आपके यहाँ पे करेगा वो. तो ये आपको होगा यहाँ पे ऑप्शन है, राइट. बाकी यू नो दैट प्रोलैक्टिन इज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है. हाँ जी जसमीर बोलिए. सर डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है ना वो. दो चीजें रखना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क माय प्रोलैक्टिन करेगा, सिक्रेशन और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज डन बाय माय ऑक्सीटोसिन. ये करेगा आपका प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन. बताइए एडीएच और वेसोप्रेसिन इज व्हाट, क्या होता है ये? टेक टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड. एडीएच और वेसोप्रेसिन यहाँ पे आपका क्या करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा? आसान है बेटा, बताओ जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे?
जानवी जानवी, हाँ जानवी, आप ही तो बेटा, एक ही जानवी तो क्लास में। बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बोलो वापस से। जानवी लेफ्ट द चैट रूम। राइट, बताइए तो अमृत, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सब बी ऑप्शन। Hormones secreted by pituitary that promotes the reaction of water from the glomerular filtrate. That's true. That is what my ADH is known for. यही को यहाँ पे करेगा, तो ये आपका यहाँ पे सी आंसर बन जाता है। The activity of formation of milk and ejection of milk is controlled by formation of milk and ejection of milk. इन्हें यहाँ पे कौन कंट्रोल कर देता है यहाँ पे, बताइए जसनूर। बोलिए जसनूर, अनम्यूट करके। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी कह रहे हो आप यहाँ पे। क्या लग रहा है अपूर्व आपको इसका आंसर? ए ऑप्शन। पूर्वा, ऑलराइट। तमनप्रीत बी ऑप्शन। एंड जानवी? बी ऑप्शन सर। बी आएगा ना यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन पहले आएगा, फिर आपका आएगा ऑक्सीटोसिन यहाँ पे। अपूर्वा इज लाइक फॉर अ चेंज लेट्स गिव समथिंग एल्स एज आंसर। योर ऑप्शन विल बिकम द करेक्ट आंसर इन दिस। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आप करेगा, यहाँ पे प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन विल डू द इजेक्शन ऑफ मिल्क। ध्यान से देखो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। Read the question by yourself and tell me what can be the potential answer in this. Right? बताइए तो अनप्रीत, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सब बी ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे बी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। राइट। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आपका सिंथेसाइज तो हो जाएगा बट कुड नॉट बी स्टोर्ड। इसको आप स्टोर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। So oxytocin reciprocating will be synthesized but it cannot be stored over here. So this is what we'll be finding in this. Hypothalamus is what? हाइपोथैलेमस को लेके कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बताइए। ये हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये तो। बताइए सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ए। राइट। तमनप्रीत? सर डी ऑप्शन। बुरा जानवी? डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। It is my option D, beta. All of you are it is a basal part of diacephalon. Hypothalamus is always going to be there in the basal part of my diacephalon में आपको मिलेगा देखने के लिए। This one, somatostatin from hypothalamus gland. जो आपका somatostatin आपका जो यहाँ पे होता है, ये आपका क्या कर रहा होगा यहाँ पे? What it will doing actually over here? ये हम कर चुके हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बताइए, what is my hypothalamus, what is my somatostatin will doing over here? बताइए जानवी। सर बी ऑप्शन। तमनप्रीत अपूर्वा एग्री करते हो आप बी के साथ यहाँ पे? यस सर। Right, it's going to inhibit the release of my growth hormone from the pituitary gland. So this is going to inhibit the release of growth hormone from the pituitary gland. So option B बनेगा यहाँ पे ऐसा correct answer. This is what we have done. अगर आप इतने questions अगर आप solve कर पा रहे हो, that means you have understanding. अगर आपसे इतने questions solve हो पा रहे हैं, that means you do have an understanding till the things we have done over here. ठीक है? So हमेशा, and I'll tell you one thing very clearly, relax रहो अगले MT के लिए। जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ये 3 चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं, न्यूरल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, आपका यहाँ पे लोकोशन हो गया, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 20 मिनट निकाल लो एक दिन में एंड जस्ट रिवाइज दिस 3 चैप्टर्स, राइट, और डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर देम। अभी जब मैंने इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया आपसे, अगर आप बैठ के यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे, देन ये हो गया। अब इस चैप्टर को आप ज्यादा वक्त इसमें जाया मत करो, और अगर आई वुड से एनसीईआरटी पढ़ लो 20 मिनट निकाल के, दैट्स इट, एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्लांट फिजियो, राइट।
हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे नंबर ऑफ चैप्टर हम प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो में से हम कर ले कवर। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, जितना होता है हम अच्छे से करेंगे बस। दैट्स द ऑब्जेक्टिव हो रहा है। बाकी 12th तो आपका चल ही रहा है, 12th के बायो को लेकर तो आपको ज्यादा कोई कंसर्न है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आप रिवाइज कर चुके हो मल्टीपल टाइम्स। बस मुझे बायोटेक वाला जो प्रोसेस वाला चैप्टर है उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, सो भी आपका फिर आपका उसके ऊपर भी ग्रिप आपका बन जाएगा वहां पे, सो दैट विल आल्सो नॉट बिकम अ कंसर्न फॉर यू, है ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और जो होमवर्क आपके साथ शेयर किया ना मैंने आपके साथ ग्रुप के अंदर, उसे सबमिट करो, सॉल्व करो, सबमिट करो, सो आई कैन शेयर अदर होमवर्क विद यू एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ करके मुझे सर शेयर कर दिया, एनसीईआरटी रीड कर भटक रहे हो एंड देन शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद मी, राइट। सो डू दैट, राइट। सो मुझे एक बार बता दो एक बार फिर कि आई होप यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर वो सब चीजें आपको हमें समझ आ रही है। यस सर। यस सर। Yes, so यस सर। एनसीईआरटी का रीडिंग आप यहाँ पे कर लेना अपने एंड पे, सो दैट विल मेक थिंग्स मच मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट मी एंड दिस स्लाइड शो। अगर आपका कोई सवाल है यहाँ पे तो आप सवाल पूछ सकते हो। आई डू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कई बार ठंड में रात तक बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, द काइंड ऑफ थिंग वी आर ट्राइंग टू अचीव, इट्स वर्थ इट, ठीक है। और लेट्स चलो रैप अप करते हैं। जस्ट आप रुक जाना, जस्ट वेट फॉर